کیا رے وہابی تو بھی کیا کیا بکتا ہے، کیا رے وہابی تو بھی کیا کیا بکتا ہے، بکتا ہے، بکتا ہے، ارے پر کنز الایمان بریلی والے کا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ، میرے سلام کا جواب وفادار رسول نے۔ سامعین کرام، یہ ریکارڈنگ آپ سنیے، یہ ایک اہل الحدیث ہے جو بریلوی بن کے آیا تھا بات کرنے نور حسن برکاتی بھائی کے پاس، اور ایسا سوال لے کر کے آیا تھا کہ آپ سنیں گے تو ہنسیں گے۔ تو پرسنل میں گالی گلوچ بھی کر رہا ہے، ریکارڈنگ بھی ریکارڈنگ بھیج رہا الٹی سیدھی، وہ ریکارڈنگ نہیں لگا سکتے ہم۔ آپ دیکھیں، جب نور بھائی نے اس کا نمبر مجھے دیا تو میں نے جب اس سے بات کی تو میں نے اس سے وہی سوال کیا جو یہ لے کر کے آیا تھا، لیکن پلٹ کے۔ اب دیکھیے اس جاہل کی اولاد کو، اتنا بڑا یہ جاہل گھامڑ ہے، اور توصیف الرحمان نے جب سے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جو شیخ لڑکیاں خرید فروخت کرتے ہیں اور اس کو پیسے دے کے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اسلام میں جائز ہے، اور آج بھی جائز ہے، اس دور میں بھی جائز تھا۔ تو یہ حرام خور اسی کے ڈیفینس میں نکلے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ باندیاں اس دور میں جائز تھی تو آج بھی جائز ہے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، باندیاں جائز تھی تو اپنی ماں بہن کی بولی لگا، میں بھی خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ تو دیکھیے کیسے ان لوگوں کو مرچی لگی، دوسرے کی ماں بہن کو خریدنے میں ان کو مرچی نہیں لگتی ہے، اپنی ماں بہن کو بیچنے میں ان کو مرچی لگتی ہے۔ تو جو قانون اس دور میں تھا وہ قانون آج نہیں ہے، لیکن یہ حرام خور اس کو جائز کرنے میں لگے ہوئے ہیں، نکاح مسیار کروا رہے ہیں۔ نکاح مسیار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت کو خریدو، اس سے رقم طے کرو اور اس کو ضرورت کے لیے 2-3 مہینے رکھو اور اس کو رقم دے کے چھوڑ دو۔ تو یہ حرام خور اس دور کو آج بھی چلا رہے ہیں۔ تو دیکھیں جاہلوں کو اور اس کی نمبر دیا جا رہا ہے، اس کی اچھے سے خیریت لے لیں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو، بولیے بھائی بولیے۔ ہیلو، ہاں جی ہیلو، آواز آ رہی ہے میری ادھر؟ ہیلو ہلو، جی، کیا نام ہے آپ السلام کا؟ علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی، کون بول رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ بھائی جان نام بتا دیں ذرا، نام کیا ہے اور کس مسلک سے ہیں؟ بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ میں دیوبندی ہوں۔ اچھا، دیوبندی ہو؟ ہاں، اچھا، نام ہے ارمان رضا۔ دیوبندی ہو اور نام ارمان رضا؟ آپ جیسے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے رکھا تھا، اصل میں تو دیوبندی ہے۔ اچھا، تو یار کیوں دھوکہ دیتے ہو بھائی؟ آپ بھی تو دیتے ہو دھوکہ، اس لیے میں دھوکے باز کو دھوکے سے ہی کام لیتا ہوں۔ ایک دھوکہ دکھاؤ میرا، ایک دھوکہ کوئی۔ آپ کے میں نے بہت ویڈیو دیکھے، میں آپ سے متاثر ہوں، ایسا نہیں ہے یار۔ نہیں تو ہمارا ایک دھوکہ دکھاؤ آپ۔ میں سچ بتاؤں، میں دیوبندی نہیں یار، میں رضائی ہوں۔ نہیں دیکھیے، یہ یہاں چل نہیں پائے گا، جو بھی ہو آپ وہ بتاؤ، ٹھیک ہے؟ نہیں، میں ارمان رضا بریلوی۔ تو تھانوی کو تو کافر مانتے ہو گے؟ کافر ہے سالہ۔ اچھا جی، اب بتائیے کیا معاملہ ہے، کیا میٹر ہے؟ وہ جو حدیث ہے کس نے بھیجی ہے؟ ہاں، آپ نے کیا پڑھا تھا وہ اس میں؟ نہیں وہ دیکھیے، آپ میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتائیں، اگر بات آپ کو سمجھنی ہے تو بھائی جان۔ آپ مجھے نہیں جانتے ہو، مجھ سے واقف بھی نہیں ہو آپ، جی، کیونکہ دھوکہ دینے والے بہت سارے ابلیس آتے ہیں، ہے نا؟ تو آپ مجھے پوری بات بتائیے، کس نے بھیجا ہے آپ کو، یا آپ نے ہی کہیں سے نکالا ہے؟ آپ مجھے سیدھی بات بتائیں۔ یہ جو حوالہ ہے جو آپ نے بھیجا ہے مجھے، جی جی، یہ آپ نے ہی نکالا ہے کہیں سے میرا امتحان لینے کے لیے، یا کسی نے آپ کو بھیجا ہے؟ سچ بتانا، خدا کو گواہ بنا کر۔ خدا گواہ ہے، اور آپ کو جو بھیجے ہیں وہ تو کئی بھیجے ہیں، کوئی ایک تھوڑی بھیجا۔ اچھا، تو جو ہے دراصل یہ حدیث ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح البخاری 529، بخاری شریف کی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ بے شک آپ جانتے ہوں گے کہ قرآن کے بعد معتبر کتابوں میں یہ اول درجے پہ ہے۔ ہلو، ہاں ٹھیک ہے، میں سن رہا ہوں آپ کی بات۔ جی، تو یہ اسی کے لیے یہ بھیجا تھا، تو یہ بات میں کچھ سمجھ نہیں پایا۔ آپ اگر کہیں، آپ اگر بزی ہوں تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ آپ نے ہی نکالا تھا یا کسی اور نے نکالا تھا یہ حوالہ، یا کسی نے آپ کو بھیجا ہے؟
एतराजन? हमने ही निकाला था। अच्छा, आपने ही निकाला था। हाँ। अच्छा अच्छा, तो आपने इससे क्या समझा? मैं आपको पढ़ के सुना दूं, आप सिर्फ सुनते रहिए, अपना अपना काम करते रहिए, आपका काम भी ज्यादा नहीं हटेगा, और मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। बोलिए। ऊपर तो रावी लोग लिखे हैं, लेकिन मैं खास खास हदीस पढ़ दे रहा हूँ कि जी। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी साहबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जमा के लिए जाते हैं, हम जमा तो आप जानते ही होंगे, लौंडियों को लिए जमा के पास जाते हैं, हमारा इरादा उन्हें बेचने का भी होता है, तो आप अदल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं? अदल भी जानते होंगे आप? हाँ, अदल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं? उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह को भी पैदाइश अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दी है वो पैदा होकर ही रहेगी। हाँ, तो इससे मतलब आपने क्या समझा, थोड़ा सा बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। इससे हमने ये समझा कि जैसे उन लौंडियों के पास जमा के लिए भी जा रहे हैं और उनका इरादा बेचने का भी है, और जो अदल कर रहे हैं तो अदल के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि अल्लाह जिसको भेजना चाहता है दुनिया पे उन्हें तो भेज ही देता है वो। जी। तो इससे तो ये हो गया ना फिर कि अगर जैसे अदल ना किया, बच्चा उसके पेट में हुआ और हमारा इरादा तो उसे बेचने का है, और ऐसे बेच भी दिया फिर। जी। तो मतलब हुजूर ने जो बात कही और वो सहाबी ने जो हुजूर से कहा, उससे आप क्या मुराद ले रहे हैं, मुझे ये बताएं। मतलब ये कब की हदीस है, कौन सी हदीस है, किस वक्त की हदीस है? मैं तो आपको बता रहा हूँ सही बुखारी की। हाँ ठीक, सही बुखारी की है, मगर सही बुखारी ये कब बनी? ये कब बनी? हाँ, आप बताएं कब बनी। अच्छा, देखिए भाईजान, ये उस वक्त का वाकया है कि जब इस बात की मनाहिदी नहीं आई थी और इब्तिदाए इस्लाम था। ठीक है, जैसे एक हदीस आपने पढ़ी होगी हुजूर की जी, कि शराब की पहले हुर्मती नहीं, मतलब शराब की पहले मनाहिदी नहीं थी जी, शराब पिया करते थे जी, तो उस वक्त वो हराम ही नहीं थी जी। ठीक है। तो सहाबा इकराम जो है मतलब पी लिया करते थे, इब्तिदाए इस्लाम था, नया नया दीन लेकर आए थे और उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से कोई मनाहिदी नहीं आई थी, तो पीते थे, हुजूर के सामने भी पी लिया करते थे। हाँ, वो हुजूर ने पी थी हुजूर के सामने। हुजूर ने जैसे जैसे जो मतलब कानून आता रहा वैसे वैसे हुजूर ने सहाबा इकराम को बताया। ठीक है, जब जिस चीज का अल्लाह ताला की तरफ से हुजूर को हुक्म आ गया जी, तो इसी तरह जब ये शराब की जो है मनाहिदी आ गई कि अब जो है ये शराब मुसलमानों पर हराम है, तो फिर वो दिन भी आपको याद होगा कि मटके के मटके फूट रहे थे जी। और जिसके हाथ में प्याला था लबों तक नहीं गया कि चलो यार बाद में देखा जाएगा, तो लाओ मेरे हाथ में है, लबों तक पहुंच गया तो लाओ पी लेता हूँ जी। जैसे जिसके कानों में आवाज जाती गई तो शराब का दरिया बह गया, है ना? सब फेंक दी, शराब बहा दिया सब नालियों में। आपको पूरी तहकीक तो आपको मालूम होगी ना भाईजान? क्या जी? इस बात में पूरी तहकीक तो आपको मालूम होगी ना कि सहाबा इकराम ने जो है उसी वक्त जैसे जैसे जिसको आवाज पहुंची जी जो है सबने छोड़ दिया। ठीक है, ईमान वाले जिसको कहते हैं। हाँ, ईमान वालों का मतलब यही है हाँ। कि जो भी हुक्म अल्लाह की तरफ से मिला उसको एकदम छोड़ा फिर। जी 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 जी। इसी तरह ये उस वक्त की बात है और ये सहाबा कह रहे हैं कि या रसूलल्लाह हम ऐसा करते हैं, तो हुजूर ने इसका हुक्म नहीं दिया, बल्कि हुजूर ने ये कहा कि अच्छा तुम ऐसा करते हो। समझ रहे हैं? अच्छा तुम ऐसा करते हो, यानी वो सहाबा कर रहे हैं आपस में, हुजूर की तरफ से कोई हुक्म नहीं। हुजूर की तरफ से हुक्म नहीं, लेकिन हुजूर को पता भी नहीं है कि सहाबा कर रहे हैं। हाँ सुनिए ना, तो जब तक इसकी मनाहिदी ही नहीं आई थी तो हुजूर अपनी तरफ से थोड़ी कोई बात कहते हैं। फिर इसके इनकार की भी जो है इसका इनकार का भी सबूत है। अच्छा जी, ठीक है भाईजान, जरूर चाहिए मुझे वो। इंशाअल्लाह
इंशाल्लाह आपको जरूर दे देंगे, ठीक है। हाँ तो जब इस तरह मतलब सहाबा के लिए करना मतलब मनाही हुई, जी, तो फिर सहाबा इकराम ने वो उस तरह नहीं किया। और लौंडी जो होती हैं वो गुलाम होती हैं, है ना, मतलब खिदमत करती थी, तो उस वक्त वो चीज मतलब वो पहले से ही चली आ रही थी। हाँ हाँ, ये नई नहीं थी, मतलब बहुत मतलब पुरानी थी वहाँ। हाँ, वो बात सही है, लेकिन पहले रसूलुल्लाह का दौर थोड़ी था जो पहले से चलती थी। तो तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ भाईजान, तो इसीलिए तो साहबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह हम ऐसा करते हैं, तो इसमें क्या मतलब हुक्म है। हुजूर ने कहा अच्छा तुम ऐसा करते हो, कह रहा ना हुजूर अच्छा तुम ऐसा करते हो, है ना, यानी अपनी तरफ से जो है हुजूर ने नहीं कहा कि हाँ तुम सही करते हो या क्या करते हो तुम करो, ये तो नहीं कहा ना। ये तो हुजूर ने तो ये कहा अगर तुम ऐसा ना करते तो भी कोई हर्ज। हाँ, बहरहाल तो मैं वो हदीस आपको दे दूंगा, ठीक है, वो जो सबूत है जो हवाला, ठीक है। हाँ, तो जैसे बेचने वाली बात बताओ, जैसे इस बात को अगर अल्लाह ताला की तरफ से मना का हुक्म नहीं आता तो क्या हमारा दिल इस बात को गवारा करता है कि हम इंसानों को चीजों की तरफ बेचें? देखिए जैसे जैसे जो भी कानून हुआ समझ रहे, तो वैसे वैसे जो है मुसलमान मानते चले गए, हुजूर का जो फरमान हुआ मुसलमान मानते चले गए, है ना, एक दूसरे के गुलाम। और जो सीने में रखा दिल है वो खराब बातों पे धड़कता है। हाँ। तो जो है जैसे आप बहस कर रहे हैं या आपको सबूत चाहिए, खाली बहस करना मकसद है? नहीं, किसी का इल्म ना आजमाएं आप हमको ये बताते हैं भाई। देखिए लड़ाई सुनिए, तुम्हारे अंदर मुझे बुग़्ज़ सा नजर आता है, अपनी बात कहते चले जाते हो, दूसरे की नहीं सुनते हो यार सर मैं आप ही की तो सुन रहा हूँ इतने देर और से। तुमसे मेरी पहले भी हो चुकी है, शायद तुम ही थे या कोई और था उस ग्रुप का, दीन इस्लाम का पता नहीं किसी और ग्रुप का, लगे तक जाने। बहुत सारे फसादी ऐसे हैं जो अपने आप को बरेलवी कहलाते हैं, सुन्नी कहलाते हैं, मगर दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। नहीं नीचा मैं आपको थोड़ी दिखा रहा हूँ। अच्छा आपको मैंने क्या नीचा दिखाया? आप नहीं, बताएं पहले। जब मैं कोई बात कह रहा हूँ तो उसको सुन लो आप। चलो ठीक है मैं सुन रहा हूँ, कहो। पहले एक दूसरे को गुलाम बना लिया करते थे, हाँ जो कमजोर लोग हुआ करते थे, गरीब लोग हुआ करते थे, वो मतलब अमीर लोगों की गुलामी में रहा करते थे। लेकिन ये जैसे कि आपने हम लोगों को लगता है ना कि इंसान की गुलामी क्यों करे। अरे यार वो तो तुम्हारा अपना मानना है ना, जो हुआ जो तारीख है मैं वो बता रहा हूँ यार आपको। नहीं हाँ तारीख तो आप बता रहे हैं, लेकिन खराब चीजों से दिल तुम यार बहस करते हो, खमा खाई की बहस, खमा खाई का मतलब यार मैं कोई इल्म वाला नहीं हूँ ज्यादा, मैं कोई ज्यादा इल्म वाला नहीं हूँ। अगर तुम्हें बहस करनी है तो मुफ्ती से जाके करो ना, वाले नहीं है किसी मुफ्ती से बहस करो ना। मैं जो कह रहा हूँ उसको सुन लो आप। हाँ, आपने हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो है आपने नाम सुना होगा जी, हैं? कैसे चहीते सहाबी हैं हुजूर के, और कितनी सजा। मैंने झूठा वाकया भी सुना था, हैं? मैंने उनका एक झूठा वाकया भी सुना है। जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो ना, तुमने झूठा सुना हो या सच्चा सुना हो, मुझे उससे क्या लेना देना है। जब तक आपका हजरत बिलाल ने अजान नहीं दी थी, सुबह नहीं हुई थी, आपने भी सुना होगा। ये बात गलत है? हाँ तो ये गलत बात है तो चलती है। तो मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हो इस बात को? तुम यार सरदर्दी करने आते हो। चलो खत्म करो, तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं। तुमको मतलब कम हकीर समझते हो, कम हकीर जानते हो। ऐसा अल्लाह के बंदों की ये शान नहीं है कि दूसरे को नीचा दिखाए और दूसरे को कम हकीर जाने। तो वो अल्लाह के बंदे नहीं थे जो लौंडी रखते थे? जो मैं कब कह रहा हूँ कि अल्लाह के बंदे थे या नहीं थे? तुम ही बहस कर रहे हो। नहीं है कि लोगों को नीचे अंदर मुनाफिकत मुझे करवा दे रहे हैं। मुनाफिकत झलकती हुई नजर आती है तुम्हें? हमारे अंदर मुनाफिकत झलकती हुई नजर आती है। मैं जो कह रहा हूँ उसको सुन नहीं रहे हो। लौंडियों की तरह रख रहे हैं उनको पेट वाला करके उन्हें बेच दे रहे हैं, तो ये अल्लाह के बंदे नहीं है क्या? तुम्हारे अंदर मुनाफिकत नजर आती है। आपके अंदर भी मुनाफिकत है। आप जब तुम हदीस खुद ही पढ़ रहे हो और हुजूर ने फरमाया, जब तुम खुद ही हुजूर पढ़ रहे हो और तुमने खुद ही जो है फरमाया कहा है जी कि हुजूर ने ऐसा कहा, तो हुजूर का अच्छा तुम ऐसा करते हो तो मना करना चाहिए ना। अरे तो भाई हुजूर पे इल्जाम लगाओ कि हुजूर ने ऐसा करवाया या किया। नहीं है नहीं, हदीस तुमने पढ़ के सुनाई है ना। तुमने कहा कि अच्छा हुजूर ने कहा कि अच्छा तुम ऐसा करते हो, ऐसा अगर ना भी करते तो भी कोई हर्ज नहीं। हुजूर पे ये अब किस बात को कहा हुजूर ने, उसकी वो है मतलब वो निकालो सनद।
मैं कह रहा तुम मुनाफिक लोग हो यार, मुनाफिक लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं। हूँ, एक बात बताओ। अच्छा तुम ये बताओ तुम्हारा सिलसिला क्या है, ये बताओ जरा तुम। सिलसिला मेरा ये बरेलवी सिलसिला है। झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। बरेलवी लड़ते नहीं है, अपने सुन्नी भाइयों से तो लड़ते ही नहीं है। इस्लाह एक अलग होती है और लड़ाई झगड़ा एक अलग होता है। ये इस्लाह नहीं है, ये इस्लाह नहीं है। तुम्हारे दिल में बुग़्ज़ है सुन्नियों की तरफ से। जिहाद फर्ज है भाई, कुरान अरे उठाओ। भाई सुन्नियों की तरफ से बुग़्ज़ है तुम्हारे दिल में, तो ये जिहाद थोड़ी, ये तो फसाद है। अच्छा अच्छा ठीक है, चल कोई जा। बात नहीं। हेलो हेलो, और भाईजान कैसे हैं? बढ़िया जमशेद अली बात कर रहा हूँ। जी। जमशेद अली कादरी बात कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा, कहाँ से? दिल्ली से। जी, बरेली से? दिल्ली दिल्ली। बरेली से? हाँ सुनाइए। तो आपकी एक रिकॉर्डिंग सुन रहा था, नूर हसन साहब से आप बात कर रहे थे। हाँ रिकॉर्डिंग, हाँ तो हाँ, तो मैंने बोला कि यार आप लोग इस तरीके के सवालात करते हैं। सवाल वो है ना हदीस में, हदीस साहब के थोड़ी। हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, अगर कोई आपसे गैर मुस्लिम एक सवाल करे, सवाल आपसे ये करे कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में हाँ। सगे भाई बहन में निकाह जायज था, आज की तारीख में नहीं है। हाँ। तो भाई उस वक्त सगे भाई बहनों में निकाह क्यों जायज था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मना क्यों नहीं किया था? नहीं ऐसा है, ये रेफरेंस होता है तो वो पक्का सबूत होता है। क्या? जो हदीसों में है हम वही पूछ रहे हैं। तो मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ ना जो हदीसों में है। मैंने कोई दूसरी चीज तो नहीं पूछी आपसे। मैंने भी वही पूछी जो हदीसों में है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में हजरत आदम अलैहिस्सलाम सगे भाई बहन का निकाह करवाते थे, निकाह होता था। हाँ हाँ ठीक है। अब उसके बाद फिर ये आखिरी दौर में, आखिरी, सुनिए बात सुनिए, बात सुनिए पहले। तो कोई आपसे ये गैर मुस्लिम सवाल करे कि भाई आदम अलैहिस्सलाम तो नबी थे, तो नबी होके सगे भाई बहनों में निकाह करवा रहे, तो कैसे नबी हैं आपके? तो आप जवाब क्या देंगे उसको? हाँ वो तो है। क्या जवाब देंगे? ये आपने जो बताया ये तो इसका कोई हवाला वगैरह मिल सकता है? अरे यार तो ये इसमें क्या छुपी ढकी बात है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सगे भाई बहन से निकाह नहीं करवाया, तो आबादी कैसे बढ़ी थी? मैंने निकाह करवाना आपने। तो फिर इसमें हवाला क्या मांग रहे हैं आप? नहीं आप ये कह रहे हैं हदीस में लिखा तो मतलब तो हदीस चाहिए, तो हदीस चाहिए तो मुत्तफक हदीस है, इसमें तो बुखारी मुस्लिम सब में मौजूद है। अब आप मुझे बताइए क्या आप इनकार करते हैं इस बात का? क्यों इनकार करेंगे? मतलब थोड़ा रेफरेंस चाहिए। तो जब सही है तो आप इसका फिर सबूत क्या मांग रहे हैं मुझसे? आप इसका जवाब मुझे दीजिए कि अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप जवाब क्या देंगे उसको? मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, हम बिना सबूत के कोई बात नहीं करते। मैंने क्या पूछा? ये आप इसका पहले इनकार कर दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ? आप इसका इनकार कर रहे हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में हजरत सगे भाई बहनों में निकाह नहीं होता था। पहले बताइए, इनकार कर रहे हैं तो मैं सबूत दूं आपको। हाँ होता तो जब आप रजामंद है होता था तो फिर सबूत क्यों मांग रहे हैं? जाहिल आदमी है क्या आप? अरे तो भैया आप मुझे ये बताइए, एक मिनट सुनो, फिर वही रेफरेंस। जब आप इस बात पे एग्री है, पूरी उम्मत इस बात पर एग्री है, एक यहाँ तक के गैर मुस्लिम को भी मालूम है कि आबादी बढ़ाने के लिए सगे भाई बहनों में निकाह हुआ है, तो आप हामी भर के मुझसे सबूत मांगने से बड़ी जहालत क्या होगी? अच्छा मुझे ये बताइए, जो मैंने आपने अपने जो मैंने हदीसें भेजी पढ़ी आपने? मैंने जो सवाल किया उसका पहले आप मुझे जवाब इनायत करें। आदम अलैहिस्सलाम, कोई गैर मुस्लिम आपसे ये सवाल करे कि भाई आदम तो नबी थे, तो नबी सगे भाई बहनों में शादी कराने तो आज के दौर में आम आदमी क्यों नहीं करा सकता? इसका जवाब इनायत करें पहले आप। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, जैसा जूता आप लेके आए थे नूर हसन भाई के पास, वैसा जूता मैं आपके पास लेके आया हूँ। अरे तो यार, और उसी जूते से आपके मुंह पे पड़ रहे हैं धबाधब। हाँ वो तो मालूम पड़ रहा है किसके पड़ रहा है। हाँ, आप सुनिए मेरी बात। ये जहालत की पहचान है, जाहिल की पहचान ये होती है कि वो सवाल करता है जाहिलाना। अच्छा हाँ, ये जाहिल की पहचान है। जो हदीस में लिखा वो गलत लिखा, तो जाहिल के बच्चे ये भी तो हदीस में लिखा है ना। हाँ तो रेफरेंस तो इनकार कर नहीं है तो मैं रेफरेंस देता हूँ। तू तो हामी भर रहा है तो फिर रेफरेंस क्यों मांग रहा है मुझसे?
अरे भाई थोड़ा उन लोगों को भी बताना। अबे तो जाहिल के बच्चे बताना क्या है, ये तो लिखा हुआ है। ऐसा मैं करता तो हूँ। तू इनकार कर कि आदम अलैहिस्सलाम ने सगे भाई बहनों में निकाह नहीं करा। तू इनकार कर पहले। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको दीन इस्लाम धर्म में तू पहले इसको इस्लाम कर, पहले इसको इनकार कर। तो तू अगर इनकार करेगा तो तू नबूवत का इनकार कर बैठेगा, मतलब आदम अलैहिस्सलाम ने गलत काम किया। और अगर तूने नबी का इनकार कर दिया तो तू काफिर हो गया। नहीं, कौन कह रहा है? तू रेफरेंस मांग रहा ना मुझसे, जाहिल के आप जाहिल बच्चे। तो जाहिल के बच्चे मुझसे रेफरेंस क्यों मांग रहा है जब तू हामी भर रहा है इस पर? जब पूरी उम्मत पूरे उलमा की जमात इससे इत्तेफाक है कि उस जमाने में अगर सगे भाई बहनों में निकाह नहीं होता तो आबादी नहीं बढ़ती। चलो ठीक है, आप सुन जाहिल सुन, अबे जाहिल सुन पूरी बात सुन, अब चुपचाप खामोशी से सुन। सुनाइए। जब उस दौर में सगे भाई बहनों से निकाह नहीं होता, अबे सुनना जाहिल तेरे से रोज चलाता हूँ मैं, सुन। अगर उस दौर में सगे भाई बहनों में निकाह नहीं होता, अबे तेरी तमीज की कमीज को उतारने आओ, तेरी रिकॉर्डिंग जाएगी यूट्यूब पर तेरे नंबर के साथ, समझा? कि देखो ऐसे खबीज जाहिल घूम रहे हैं जो साले गैर मुस्लिमों के साथ उठते बैठे खाते पीते हकते मुतते हैं और गैर मुस्लिमों वाला सवाल लेकर के आते हैं। के साथ मैं लौंडी का बता रहा हूँ, समझाना। अबे तो सुन, साले लौंडी का भी सुन, छुटिया सुन। हाँ सुना। सूरे अहज़ाब आयत नंबर 50। हाँ, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ने तुम पर वो औरत हलाल की है जिसका तुम मेहर अदा करते हो, और तुमको वो औरत भी अदा की हलाल की है, पाक की है, जो तुम्हारी बांधिया है। तो उस दौर में जाहिल के बच्चे बांधिया इसलिए हलाल की गई थी, मुस्लिम आबादी बढ़ानी थी। अच्छा, समझा? जाहिल के बच्चे। और कुरान कह रहा है, सूरे अहज़ाब सूरे आयत नंबर 50 सूरे अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो जिसका मेहर तुम अदा करते हो वो लड़कियां भी तुम्हारे लिए जायज है, वो तुम्हारी बीवियां हुई। और जिसको तुम खरीदते हो, जो बांधिया कहते हैं, जो तुम्हारे गुलामों में आती है, गुलामी में आती है, उसको भी तुम पैसा दे करके खरीदते हो, तो वो भी तुम्हारे लिए हलाल है। अरे कुरान झुटलाएगा तू? तो कुरान झुटलाएगा? कुरान झुटलाएगा तू? अल्लाह तो खुद कह रहा है। तो फिर तो जाहिल के बच्चे पढ़ इस आयत को, इस आयत को पढ़ पहले। अब इसी आयत के, अबे ये आयत जब भी आई, अबे चूतिया सुन, वो बुखारी जब वो बुखारी की हदीस पे बताइए, लौंडी को बेचना सही है गलत है ये बताइए? आज के दौर में गलत है, उस दौर में जायज था। अच्छा, जिस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम के दौर में जायज था सगे भाई बहन से निकाह करना। और चूतिया सुन, अबे सुनना चूतिया, तो तू अपनी माँ बहन को क्यों बेच रहा है? तू ही तो बेच रहा है ना जा करके। कौन तू क्यों बेच रहा है अपनी माँ बहनों को? जब कोई बेचेगा नहीं तो खरीदेगा क्यों? अबे गधे के बच्चे, तू नौकरी करता है ना? हाँ, किसके यहाँ नौकरी करता है तू? अबे किसके यहाँ नौकरी करता है तू? किसके यहाँ नौकरी करता है तू? जमाने में भैया किसके यहाँ नौकरी करता है तू? बहन को बेचने को सही कह रहा है। अबे तो जाहिल की औलाद उस दौर में बांधियां खरीदी जाती थी, मतलब काम करने वाली मुलाजिमें खरीदी जाती थी। हाँ, तो ये उस दौर में जायज था, बाद में ये बंद कर दिया गया। जाहिल के बच्चे बंद कर दिया। तो ये अमल सही था क्या? सगे भाई बहनों में निकाह कराना बंद कर दिया। सगे भाई बहनों में निकाह कराना अमल सही था? नहीं, पहले हवाला। अबे पहले छूतिया मेरी बात सुन, सगे भाई बहनों में निकाह कराना जायज था? नहीं, तूने ये कहा सूअर की औलाद, खंजीर के बच्चे, जाहिल की औलाद, काफिरों के साथ रहते रहते साले काफिर हो गया तू भी। तुझे कुछ नहीं आता। अबे खंजीर के बच्चे, मैं क्या पूछ रहा हूँ, सगे भाई बहनों में निकाह जायज है क्या? तूने तो आदम अलैहिस्सलाम ने सगे भाई बहनों में निकाह क्यों कराया? बंद हो गया, और चूतिया सिस्टम बंद हो गया, उसका हवाले दे। अबे चूतिया के लंदन लॉन्डी का सिस्टम नहीं, मुलाजिम जिसको बांदी कहा जाता था, जो खरीद फरोख्त में आती थी। तूने कहा कि बंद हो गया। हाँ, वो बंद हो गया, आपका दौर नहीं है वो। कि पहले ऐसा होता। हाँ, तो हुजूर के जमाने में ही सुन, हुजूर के जमाने के बाद तबे ताबई के जमाने में राजा महाराजाओं ने ये हुक्म जारी कर दिया कि आज से बांदियों का खरीद फिरोख्त बंद। उलमा की जमात ने इस पे इत्तेफाक किया। अब उठाकर पढ़ तारीख तबरी पढ़ किताब, साले जाहिल की औलाद, तारीख तबरी पढ़। व्हाट्सअप कर दे, व्हाट्सअप। तेरे बाप का नौकर बैठा हूँ जो व्हाट्सअप करूंगा। अबे कुछ नहीं आता। तारीख तबरी में लिखा हुआ है कि बांदियों का सिलसिला खत्म। हवाला देना भाई, हवाला दे। तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ ना, तू हवाला दे कि सगे भाई बहनों में निकाह करना नाजायज कहाँ पे हुआ? कहाँ पे हुआ? सगे भाई बहनों में निकाह करना नाजायज कहाँ पर हुआ? कुरान में आया? ना ज़बूर में आया, ना तौरेत में आया, ना इंजील में आया, कुरान में आया? नहीं,
सूरह अहज़ाब में आया। लौंडी का जिक्र चल रहा था, लौंडी। अबे तो जाहिल की औलाद, तुझे बता तो दिया कि उस दौर में लौंडियां जायज थी जो बांदी खरीदी जाती थी। अल्लाह कुरान में फरमाया, तो कुरान को झुटलाएगा तू? कुरान को झुटलाएगा? तो झुटला रहा है। अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारी बांदियां तुम पर जायज है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 50 में अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम्हारी वो लड़की जिसको तुम महर अदा करते हो और वो बांदिया तुम दोनों, वो दोनों तुम्हारे लिए हलाल है। नहीं, लौंडी का बेचना अल्लाह ने हलाल करार दिया, तो झुटलाएगा अल्लाह के कौल को? मैं क्या करूँ? अबे खंजीर की शकल के मुझे बताना, अल्लाह ने तुझे इजाजत दी कि बांदिया तुम पर जायज है, तो तू अल्लाह के कुरान को झुटलाएगा? किसी की माँ अल्लाह के कुरान को झुटलाएगा तो अल्लाह ताला ने माँ बहनों को नीलाम करवाया? इसका मतलब अल्लाह ताला ने माँ बहनों को नीलाम करवाया। अल्लाह ताला जो कुरान में दे रहा है तो इसका मतलब अल्लाह ताला ने माँ बहनों को नीलाम करवाया। अबे तो खंजीर की औलाद, अल्लाह ताला इजाजत दे रहा है कि तुम्हारी बांदियां तुम पर हलाल है। अब इसका जवाब दे मुझे। किसी की माँ बहन सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी बांदियां तुम पर हलाल है। अब बता क्या करेगा तू? पहले हलाल थी, अब नहीं। तो अल्लाह ताला ने कुरान में नाजिल फरमा दिया कि तुम्हारी माँ बहन या तुम पे हलाल है। अब तू अपनी बांदी के साथ क्या करेगा बता? ये बता, अब तू अपनी बांदी के साथ क्या करेगा? ये बता पहले। तू पहले मुझे बता कि कुरान में ये आयत तेरे को मिल गई कि तुम्हारी बांदियां तुम पर हलाल है, तू बांदियां खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? तू ये कह रहा कि मतलब पहले मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ? खंजीर की औलाद, काफिर के बच्चे, गैर मुस्लिम की औलाद, तुझसे क्या पूछ रहा हूँ मैं? कुरान में अल्लाह ताला ने तुम्हारी बांदियां तुम पर हलाल की हैं, और वो औरत जिस पे तुम महर अदा करते हो, दोनों तुम पे हलाल की है। तो आज की तारीख में तू बांदियों के साथ क्या करेगा ये बता मुझे। ये तो पहले जमाने में था ना, अब तो नहीं है। अबे तो चूतिया की औलाद, वही तो तुझको समझा रहा हूँ, गधे के बच्चे। हाँ, तो तेरे जैसे गधे को झूठा मारना चाहिए पकड़ के। साले तुम लोगों ने बरेलियत के नाम पे धब्बा लगा दिया, काफिरों के साथ रह के साले बरेलवी बोलते हो अपने आप को, दीन को गुमराह करते हो लोगों को। ज्यादा जज्बाती भाई, ज्यादा जज्बाती ना। अबे तू सामने होता ना, जूते से तेरा स्वागत करता, बाटा के जूते से। समझा? ये कहा चूतिया साले, उस जमाने में हलाल थी, अब नहीं हलाल। तो कुरान में सूरह अहज़ाब में आया ना, जाहिल की औलाद। कुरान में सूरह अहज़ाब में आया, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 50 हवाला तो दे रहा है तेरा बाप सामने से, तू लेता क्यों नहीं है? ये हवाला किसी के? अबे हवाला दे तो रहा हूँ, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 50। हाँ, मतलब जो किसी की माँ बहन को बेचना बुखारी में, तो ये तू अल्लाह से पूछना, अल्लाह से पूछ। अब तू अल्लाह से पूछ, किसी की माँ बहन तू अल्लाह से पूछ। अबे खंजीर के बच्चे, तू अल्लाह से पूछ। मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। अबे तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? कुरान में चल इसकी मनाही नहीं आई, चल तेरे बकौल मैंने मान लिया, इसकी मनाही नहीं आई। सुन, बांदियों की मनाही नहीं आई, अभी मैंने तेरे बकौल मान लिया, बांदियों की मनाही नहीं आई, लेकिन इजाजत आई ना कुरान में। अब तू क्या करेगा बांदियों के साथ बता? तू ये कह कि पहले इजाजत थी। अबे सुअर की औलाद, मैं पूछ रहा हूँ अब तू क्या करेगा? कुरान की आयत तेरे सामने पड़ी है। अभी भी इजाजत है भाई मेरे, मतलब अभी भी तेरी माँ बहन को कोई खरीद करके उसके साथ हम बिस्तरी कर सकता है, इजाजत है? तेरी माँ बहन को। हाँ, तो लगी मिर्ची तुझे, लगी मिर्ची। अभी तो तू कह रहा है इजाजत है, तो बता तू अपनी माँ बहन की बोली बता, अपनी माँ बहन की बोली बता, अपनी माँ बहन की बोली बता, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, बता जाऊंगा। फिर जल्दी बता। बेच के भी आऊंगा मैं, उसको बेच के भी आऊंगा। तूने अभी इस रिकॉर्डिंग में कहा कि अभी भी इजाजत है। हाँ, तो अपनी माँ बहन की बोली बता, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। नहीं, ये बता, जल्दी बता, जल्दी बता। अभी तू मुंह से निकाल, और अभी तेरे अकाउंट में पैसे ना भेजू तो मैं हरामी का बच्चा। हलाला की औलाद तेरी बहन के साथ। देखिए सामीन इकराम, ये सुअर खंजीर बरेलवी बन के आता है, हरामखोर, और गैर मुस्लिमों के सवाल लेकर के आता है। अब ये सुअर का बच्चा आया था परेशान करने के लिए, लेकिन इसके मुंह में डाल दिया मैंने बरेली का मांस और नीचे से निकाल दिया। हलाला की नजायज औलाद। आप देखिए ये मूता की पैदावार आया है, इसके यहाँ मूता करना जायज है, अहले हदीस है, ये अहले हदीस अहले नजदी है, इसके यहाँ मूता की पैदावार है, मूता इसके यहाँ जायज है। तो निकाही मिसियार, जो इसका बाप तौसीफुर रहमान कहता है निकाही मिसियार, इसके यहाँ जायज है। से बात करना। तेरी बहन की बोली बता मुझको, अपनी बहन की बोली बता। बहन की बोली बता। तेरी तो मैं तो नाजायज समझता हूँ उसको, तूने जायज समझा है। दबा के आज की तारीख में मैंने नाजायज बोल दिया, तूने जायज बोला है, तो तू बोली बता। तू ये बता, तू बता, तू बता। सगी बहन अपनी सगी बेटी और सगी भाई की निकाह करेगा कि नहीं करेगा? मनाही तो नहीं तूने पढ़ी कहीं? हलाले की नजायज अबे निकाह मिसियार की औलाद, साले खबीर, तुम्हारे जैसे को ना जमशेद अली कादरी रोज चलाता है।
है, कहाँ लिखा है? काले खबीस पर्सनल में आकर के गालियां बक रहा है, ये बता, पर्सनल में आके तो गालियां बक रहा है के बच्चे। माँ बहन को बेचना ये अच्छी बात है? किसी की कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में फरमाया कि तुम्हारी बांदियां और वो औरत जिसका तुम महर अदा करते हो, और वो औरत जो बांदियां जिसको तुम खरीदते हो गुलाम के लिए, गुलामी के लिए, जिसको बांदिया कहा जाता था, तो वो तुम्हारे लिए दोनों हलाल है। तो अब मुझे ये बता कि उसकी मनाही नहीं आई है तो तूने अपनी माँ बहन की नीलामी अहले हदीस के आलिमों से कर दी जिसके साथ निकाह मिसियार किया उन्होंने। तूने ये कहा था कि हरामी के बच्चे जमाने में जायज थी, अब नहीं है। तो तूने पढ़ा नहीं ना कहीं, जब तूने कहीं पढ़ा नहीं तो मैं तुझे हवाला क्यों दूं? ये बता कौन है आलिम है, मुफ्ती है, कौन है? मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा बाप हूँ। अपनी माँ से जाके पूछ लो जिसको मैंने खरीदा था। मैं मोहल्लेल हूँ, मोहल्लेल तेरी माँ बहन के साथ। सुन तो ले तू अपनी माँ के पास जा और पूछ कि सही में उस तेरा बाप कौन है। तेरी माँ तेरे बाप का असली नाम नहीं बताई। तेरी माँ के साथ और तेरी तुम अहले हदीसों की सालों की औकात ही यही है। हाँ, जब तुम्हारी पिछवाड़े में बरेली का बांध जाता है ना अलग से निकालने में, तू पर्सनल में इतना तड़ंग रहा था, इतनी गालियां बक रहा था तू हराम को, अब तेरे मुंह में डाल दिया ना मैंने बरेली का बात। चल हो गया तेरा काम, चल चल। देखिए सामने इकराम, ये है जाहिल अहलुल हदीस, और ये सवाल लेके आया था कि बांदियां जो थी उस दौर में जायज थी, अब क्यों नहीं है जायज। तो मैंने इससे यही सवाल किया अगर अब जायज है तो अपनी माँ बहन की बोली बता। उस जमाने में अब ये बोली नहीं बता रहा है, अब इस जमाने में नहीं है तो ये बोली नहीं बता रहा है, तो तू बता ना, बोली लगा ना, अपनी माँ बहन की बोली लगा, बता कितने में खरीदवाएगा। तो बता एक रात का कितना लेगा, बता कितने में? हलाल करूंगा साले। मेरे लिए तो नाजायज है, तेरे लिए जायज है। तूने अभी फोन में बोला कि जायज है, इसका मतलब तुम लोग जो सऊदी अरब में जो तुम लोग लड़कियां खरीदते हो, फरोख्त करते हो, वो तुम्हारे लिए जायज है, लेकिन जब तुम्हारी माँ बहनों की बात आ जाती है तो तुम्हारी पिछवाड़े में लाल मिर्ची लग जाती है। तेरे तौसीफुर रहमान ने तकरीर कर दी कि बांदिया आज भी जायज है, और वो खरीद और फिरोख्त सऊदी अरब के शेख करते हैं, लेकिन उनकी माँ बहन की बात आती है तो पिछवाड़े में मिर्ची लग जाती है। हाँ, तेरे मिर्ची लग रही है, तेरी बहन आराम खोर की औरत। रख, अब पब्लिक फैसला कर लेगी, तेरे नंबर के साथ डालता हूँ यूट्यूब पे, रख साले।